Everybody, welcome or welcome back to my channel. Today we're going to talk about can you still score good percentile in JEE and also a good government university through JEE. To be very honest, if you haven't started yet, you are at a very bad position, but still you can do some things to just increase your probability of getting a good university. To be very honest, you should not do Cengage for mathematics. Like, there are many people who will advise you to make notes or do Cengage or just make a formula sheet or anything like that. Honestly, making formula sheet can be helpful to some people, but making notes and doing Cengage at this point is of no use to you guys, because you are not in that position. You don't have that much time to do all these things. And secondly, you can do RD Sharma for +1 and +2, and those who say RD Sharma is of no use, to be very honest, I am completely against that. Honestly, I have done both Cengage and RD Sharma, so yeah, RD Sharma can also be helpful to increase your understanding and stuff. You have to just be selective. You have to do like level 2 of RD Sharma like religiously, and level 1 has to also be done, but it has to be done selectively. Like, you have to not do all the questions. You have to just skip few questions which are of similar type or same type. So yeah, and then moving on to like chemistry, it's like a blind game. So if you like organic chemistry, it's not like really necessary that in your exam only organic chemistry will occur, and there is no clear criteria that which chemistry branch will occur in your exam. So you have to be like thorough with all the 3 branches of chemistry. So yeah, that is something you have to be good with, ratification, with calculation, and you should also know like few tricks and things like that. You should always solve questions rounding off. You have to see that if your answers are not closer to each other, just round off the values and just do it like that. And also, you should also know like if you multiply a few constants, then whatever value occurs, you should already learn that value so that you are quick with your calculations. Now moving on to physics. Now let's be honest that there will be many marathons going on, but don't trust anybody. Most of the teachers say कि हमारे यहाँ से आया है, हमारे यहाँ से आया है. देखो बच्चों, हमारे यहाँ से आया है, एंड वो आप लोगों को कंबाइंड बताएंगे ऑफ ऑल द शिफ्ट्स, लाइक कंबाइंड क्वेश्चंस ऑफ ऑल द शिफ्ट्स कि कितने उनकी वहाँ से आए हैं, और वो आपको बहुत ज़्यादा लगेंगे, बिकॉज इन एवरी शिफ्ट 1 or 2 क्वेश्चंस हैव अकर्ड फ्रॉम देयर मैराथन्स और समथिंग. वो सारे क्वेश्चंस एक ही शिफ्ट में नहीं आते हैं, तो दे विल बी ऑफ नो यूज़ टू यू. आपकी शिफ्ट में सिर्फ वहाँ से 2 क्वेश्चंस आएंगे. आई नो 2 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट दो क्वेश्चंस हैं वो एवरेज बच्चे के लिए इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है. इफ़ यू आर नॉट रियली गुड एट समथिंग, तो आपको खुद से रिवीजन करनी चाहिए रादर दैन रिलाइंग ऑन दैम कि वो 2 क्वेश्चन अगर आपके ठीक हो भी जाएंगे, और अगर आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वहाँ पे वेस्ट कर देते हो, तो इट इज़ ऑफ नो यूज़ टू यू गाइस. PYQs वगैरह मैं बोलूँगी आप लोगों को करने चाहिए. एंड लाइक आपको जो सब्जेक्ट लगता है कि मेरे को जो चैप्टर मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मेरे को लगता है कि इस सब्जेक्ट में तो मैं प्रो हूँ, उस सब्जेक्ट के PYQs एक बार करके देखिए. ऑल्सो आपको अगर परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी का कोई भी क्वेश्चन आता है JEE में और आपको ईजी लगता है, तो वो ईजी नहीं है. यू माइट डू इट रॉन्ग. तो इसीलिए पहले आप बाकी सारे क्वेश्चंस को कर लीजिए, उसके बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का जो क्वेश्चन है आप उसको बाद में ही करिए अटैम्प्ट. पहले मत करने बैठ जाना, बिकॉज अगर आप पहले करने बैठ जाओगे आपका वो क्वेश्चन रह जाएगा और बाकी का पेपर भी ख़राब हो जाएगा. पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका थोड़ा मैं बता देती हूँ कि सबसे पहले आप लोगों को करना है केमिस्ट्री से स्टार्ट, बिकॉज केमिस्ट्री मोस्टली होता है कि अगर हमें आती है नहीं आती है एक बार में आपको देख के पता चल जाएगा. उसके बाद आपको जाना है फिज़िक्स पे. फिज़िक्स अगर आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं भी है, तो मैथ्स से तो मतलब मोस्टली बच्चों की फ़िज़िक्स स्ट्रॉन्ग होती है. तो आपको देखना है कि आपको फ़िज़िक्स में कौन कौन सा जो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं. ऑल्दो मेरी जो फ़िज़िक्स है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी, पर फिर भी आई डिड इट कि मैंने देखा कि फ़िज़िक्स में फिर भी जो क्वेश्चन है वो थोड़े डुएबल होते हैं. ठीक है. उसके बाद हमारे पास आ जाती है मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स में आपको सबसे ज़्यादा टाइम देना है. आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से क्वेश्चन छांटने हैं, बिकॉज मोस्टली बच्चे गलती क्या करते हैं, वो क्वेश्चन छांटते ही नहीं है. वो हर एक क्वेश्चन जो उनको क्वेश्चन दिखा उसी टाइम पे वो लग जाता है करने के लिए सॉल्व. ऐसे सॉल्व नहीं होने वाला यार आपसे क्वेश्चन. आपको छांटने पड़ेंगे वो क्वेश्चन जो आपको आते हैं.
कोई भी क्वेश्चन को लेकर ऐसे ही मत बैठ जाना कि इसको मैं सॉल्व करके रहूँगा। अपनी ईगो पे कोई चीज़ नहीं लेनी है एग्ज़ाम में जाके। कोई क्वेश्चन को ऐसा नहीं देखना कि क्वेश्चन हमें देख रहा है ना आंखें दिखा के, तो हम भी उसको आंख दिखाएंगे। कोई ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, ईगो वॉर नहीं करनी है क्वेश्चन के साथ। सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो। एंड उसके अलावा कुछ और चीज़ें हैं, मैं आपको बाद में बताऊँगी, बट ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ से अब अपनी तैयारी शुरू करो एटलीस्ट।